اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ ایس ایل ایف کا فورتھ ایس ایل ایف 2021 یونیورسٹی آف سرگودا کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور وی ہیو آور پینلسٹ ڈاکٹر سمیرا جواد۔ میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ڈاکٹر سمیرا جواد واز بورن ان پاکستان، a seasoned academic of studio practice in fine arts, as well as a practicing artist with multiple solo and group shows on her credit. Dr. Sumera Jawad currently resides in Lahore. She is serving as principal of University College of Art and Design, University of the Punjab, Lahore, Pakistan. Then ہمارے پاس سیکنڈ پینلسٹ ہیں سعدیہ قطب ہاشمی، لاہور بیسڈ آرٹسٹ اینڈ ریسرچ اسکالر. شی از سرونگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان فائن آرٹس، گلبرگ کالج لاہور. دین ہمارے پاس تھرڈ پینلسٹ ہیں ہماری Maham Imran. Maham Imran was born in Karachi. She is a fiber and textile artist and completed her degree from Indus Valley School of Art and Architecture. She is currently serving at NCA Rawalpindi in Pakistan in textile design department Rawalpindi. ہمارے ساتھ فورتھ پینلسٹ ہیں ہمارے محمد جاوید صاحب. He is a painter, art critic, and author of several books. He is running a well-known art gallery, Kupra Art Gallery, Mall Road, Lahore. Welcome everyone. Thank you. Thank you, Hassan. میڈم، سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری ینگسٹ آرٹسٹ جو ہمارے پینل کے اندر ہیں، مہام عمران. تو ان سے میں کوشچن کرنا چاہوں گا سب سے پہلے. How do you associate art with liberation? مہام، آپ کے کیا ویوز ہیں اس بارے میں، جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے؟ بالکل دیکھیں حسن، دیکھیں ہر آرٹسٹ کے اندر نا ایک بورن کوالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ ہی اور شی ٹیکس دیٹ کوالٹی ٹورڈس دا ورلڈ. اب آپ جو ہو ایک آرٹسٹ ہو، اور آپ ٹریڈیشنلی بھی اس کو لے کے چل سکتے، اور آپ اس کو ایز اے کنٹمپرائز آرٹسٹ بھی لے کے، اور دنیا کے اندر آپ اس کے اندر بہت ساری چینجز لا سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ اگر آپ کے پاس وہ کوالٹی ہے نا آرٹ کی، یا آپ کے پاس وہ نظر جس کو ہم بولتے ہیں، یا آپ آرٹ کے اندر انوویشنز لا سکتے ہو، تو آپ دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہو. لائک آپ کے پاس آرٹ کا ایک پیشن ہونا چاہیے. اور پلس یہ ہے کہ اگر ہم لبرل اس کی بات کرتے ہیں، تو آئی تھنک کہ جس طرح ورلڈ موو کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی انوویشن آتی جا رہی ہے آرٹ کے اندر، کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنیکس ایوالو ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز انٹروڈیوس ہوتی جا رہی ہے. تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ کہ ہم اپنی ورلڈ کے ساتھ اپنی اس ٹیکنیک کو لے کے ایکسپلور کریں بہت زیادہ. اور آپ دنیا کے ساتھ چل بھی سکتے ہو اس طرح، اور آپ کے پاس ایکسپلور کرنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بینگ اے ٹیکسٹائل آرٹسٹ، اف آئی سے سو، ہمارے پاس جیسے ہماری آرٹ لمیٹیشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے لوم تک ہی رکھنا ہے، یا ہم لوگوں نے بس ویونگ میں کچھ کرنا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہم آرٹ ایز اے ٹیکسٹائل آرٹسٹ اور ایز اے ویور، میں ان دونوں چیزوں کو انکارپوریٹ کر کے آئی ٹرائی ٹو انوویٹ ہر روز کچھ نہ کچھ نئی چیزیں، اور پھر وہ چیزیں آگے ورلڈ کو لا کے رکھوں، اینڈ دین سی کہ اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے. Right. I would like to ask same question from Madam Sadia Kutab کہ آپ کا جو ہے وہ کیا ویو ہے لبریشن کے حوالے سے آرٹ میں؟ آرٹ تو بیسیکلی نام ہی ایک طرح سے لبریشن کا ہے، بیکاز تھرو آرٹ وی لبریٹ آل دیٹ از ود ان اس. ہم اپنے اندر کو نکالتے ہیں، اپنی جو ہمارے تھاٹ پروسیس، جو چیزیں ہمارے انسان آرٹسٹ کے اندر ہوتی ہیں، وہ باہر آتی ہیں. تو اٹ از بیسیکلی اے پروسیس آف لبریشن. تو باقی یہ کہ آرٹ میں اب پہلے ہوتا تھا کہ کچھ باؤنڈریز بنا دی جاتی تھی، اب ہم ان باؤنڈریز سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اور زیادہ آرٹسٹ جو ہے ہی ہیز گاٹ مور لبریٹڈ ویو بھی اس کا لبریٹڈ ہے، اور ایکسپریشن بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ آرٹ کا یہ یانڈرا یا یہ اسٹائل یہ کنونشنل ہے. کوئی اسٹیریو ٹائپ ہمیں نا مائنڈ سیٹ نہیں بنانے چاہیے. آرٹ میں ایکسیپٹینس ہر چیز کی ہونی چاہیے. دس از وٹ آئی تھنک. ایک لبریشن، ایک فریڈم آرٹسٹ کو بھی ملتا ہے، اور ویور کو بھی ہونا چاہیے. اور کسی بھی یانڈرا کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے کسی اور کے.
राइट मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा डॉक्टर सुमेरा जवाद से, क्योंकि मैडम का काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी रहा है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट का इंटरेक्शन भी रहता है काफ़ी ज़्यादा. तो मैडम आप जो है वो आर्ट एंड लिबरेशन को किस तरह से एसोसिएट करती हैं, और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लिबरेशन के नाम पर जो है आर्ट की एक शक्ल बदलती जा रही है ड्यू टू कॉन्टेम्प्रेरी जॉनरास और बाउंड्री से खत्म होती जा रही हैं आर्ट की. तो उसको जो है इंटरनेशनल सिनेरियो में कैसे देखा जाता है, और आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि मैं एक तो सादिया की बात को सेकंड जरूर करूंगी कि उन्होंने कहा कि इंटरेक्ट आर्ट बेसिकली आर्ट इज लिबरेशन. सबसे पहले तो बात ही वहां से शुरू हो जाती है कि आर्ट इटसेल्फ आपको एक लिबर्टी देता है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू एनी ऑनरा. और उसके बाद जो दूसरी चीज मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज नॉट न्यू. अगर हम आप जाते हैं 16th और 15th सेंचुरी में या रेनेसां की बात करते हैं तो लिबरेशन आर्ट में तो तभी शुरू हो गई थी उस हवाले से कि जब आर्टिस्ट ने आय को अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया था और उसने रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट को या जितने जैसे हम behzad की बात करते हैं और उसने अपने जो भी इस वक्त मिनिएचर में भी इवन जो काम हो रहा था उसने उसको भी रिजेक्ट किया और फिर उसने अपने तौर पे काम करना शुरू किया. और उसको इन सब जो रेनेसां की भी बात करते हैं एज यू ऑल नो कि रेनेसां क्या था कि उसमें रिजेक्ट किया था. तो आप जैसे दूसरा सवाल, तो मुझे नहीं लगता कि आर्ट एंड लिबरेशन कोई नई बात है. ये बहुत मानों से इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया और आर्टिस्ट अपने अब जो फर्क अब आया है वो सिर्फ ये आया है कि अब वी हैव सोशल मीडिया और जिसके थ्रू और फिर वी हैव डिफरेंट अब लिबर्टी ऑफ यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स या जॉनरास बेशुमार हो गए हैं. हम जो मर्जी करना चाहें और एक्सप्लोर करना चाहें. तो ये एक जो इसमें फर्क चीज आती है. और दूसरी ये बात कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है एज एन आर्टिस्ट दूसरी जगहों पर जाने का और उसमें किस तरह से बाकी आर्टिस्ट देख रहे होते हैं. तो सबसे पहले तो एक बड़ी बड़े प्राउडली मुझे एक बड़ी अच्छी बात इस दौरान ये लगी कि अगर हम अपना इस हवाले से पाकिस्तान का आर्ट देखते हैं कि रिगार्डिंग आर्ट एंड लिबरेशन या लिबरेशन इन आर्ट, तो पाकिस्तान का आर्ट आप वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी रखते हैं तो हम कहीं उसका ये नहीं है कि हम कहीं स्टैंडर्ड या लेवल में कहीं उनसे पीछे हैं. हम बिल्कुल पूरी दुनिया में उनके साथ चल रहे हैं. लिंक शेयर करें मेरे साथ फेसबुक पर. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे जो एक्सपीरियंस हुई. दूसरा ये कि जो व्यू पॉइंट हमारा है इस हवाले से, जैसे अभी माहम ने भी बात की है, सादिया ने भी बात की आर्ट एंड लिबरेशन के हवाले से, वही अराउंड द वर्ल्ड हर आर्टिस्ट वही बात कर रहा है कि वो एक्सप्रेशन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो इसको लिबर्टी मिली है वो उससे ज़्यादा इजीली अपना आप एक्सप्रेस कर पा रहा है. वरना शायद अगर उसको एक ऐसा आर्टिस्ट जो हु इज़ नॉट वेरी स्किलफुल लाइक उसका एक्सप्रेशन किसी और मीडियम में है. और जैसे हमारे पास अब हसान हैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, माहम है, जो अब थ्रू टेक्सटाइल्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. जबकि ये जॉनरा किसी एक टाइम में इसको क्राफ्ट में हम शामिल करते थे. तो ये एक लिबरेशन जो आर्टिस्ट को मिली है. मेरी एक इसी तरह एक मुलाकात हुई थी वहाँ पे. वो अपना एक्सप्रेशन फाइनली शी इज यूजिंग टेक्सटाइल मीडियम्स और उसमें वो नॉट ओनली थ्रेड बट विद द डिफरेंट क्लॉथ्स उसको वो फॉर जैसे हम अपने पेंट्स को यूज करते हैं वो क्लॉथ को काट के और उसको बिल्कुल पानी में भिगो के और उसको फिर वो स्ट्रोक्स की शक्ल में और इस तरह से ये जो आर्टिस्ट को हर मीडियम की लिबरेशन मिली, आई थिंक इट इज पॉजिटिव. मगर मेरी जैसे आसान से भी बात हो रही थी पहले कि क्या ये बहुत कोई पॉजिटिव है इसमें और स्किल लैंडस्केप के हवाले से कि वो अब आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने छोड़ दिया इसको काम करने को उस तरह से. तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है. अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें एज आई एम प्रेजेंटिंग कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, तो हमारा वो एक तरीका हमेशा से चल रहा है. हम सबको उसी तरह से ट्रेन करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर एंड देन दे ऑप्ट फॉर मास्टर्स और जो भी है डिफरेंट जगहों पर चले जाते हैं. एंड फिर आर्टिस्ट उस वक्त आके मुझे लगता है कि वो उसको लिबर्टी मिलती है फॉर चूजिंग द मीडियम, फाइनल मीडियम.
वहां पर आके फिर इस Pause, लिबर्टी को वो इस्तेमाल करते हैं और वो फिर अपने काम को connection शुरू करते हैं. better. So आई थिंक हम बाकी लोगों का व्यू भी सुनते हैं, वो क्या कहते हैं. जी हसन. मुझे लगता है हसन को आवाज नहीं जा कोई रही. पता नहीं. और स्टक हुआ है शायद उनका सिस्टम. जी जी हाँ, जी, कोई हम जावेद मसला. साहब से हम बात कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. अच्छा, ये कैसी है आप डॉक्टर सुमेरा? ठीक ठाक हैं आप? जी जी, थैंक यू सो मच जावेद साहब. माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं और मेरा ख्याल है सादिया ने भी और हमने भी अपना एक्सपीरियंस जो बताया है वो ठीक है. ये एक प्रोसेस है आर्ट का ना, आर्ट का जो प्रोसेस है जो डेवलपमेंट का, वो हमारे कल्चर के साथ साथ चलता है. जैसे वहाँ चेंजेस आती हैं, जो आर्टिस्ट देखता है उसी को वो पेंट करेगा और जो माहौल देखेगा उसको वो पेंट करेगा. तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि लिबरेट तो होता ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन आपने कहा. जी बताएं, क्वेश्चन करें. सर, सुन सकते हैं आप क्या? हसन, जी, हमें मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है. मुझे आ रही. जी जावेद साहब, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी आ रही अब है, आ रही अब है. आ रही है. जी जावेद साहब, मैं आपसे इस हवाले से सवाल करना चाहूंगा बिकॉज समवेयर आप जो है वो एक ओल्ड स्कूल से भी ताल्लुक रखते हैं सीनियर आर्टिस्ट में. तो आप मुझे बताइए कि आज, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो 40 साल से तो कम से कम है आर्ट के साथ, तो पहले का आर्टिस्ट ज्यादा लिबरल था या आज का आर्टिस्ट ज्यादा लिबरल है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, बात इवन ये मैंने तो अभी लिबरेशन तो आर्ट के अंदर है ही. है ही. डॉक्टर सुमेरा जो उन्होंने मुझे कहा तो मैं यही बता रहा था कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है लिबरेट होने का. जो जैसे जैसे हमारे कल्चर में, हमारे माहौल में तब्दीली आती है, उसी तरीके से आर्ट में, उसी वजह से. अब देखिए ना, पहले तो 4-5 कलर हुआ करते थे, वो इतनी क्वालिटी नहीं होती थी और वो फिर एक लिमिटेड सा मटेरियल अवेलेबल होता था. अब आप ये देखिए कि कितने ह्यूज जो है पेंट्स के अवेलेबल हैं, क्वालिटीज है, एक्रेलिक आ गए और नई नई चीजें आ गई. तो देखिए ना, उस तरफ भी ये चीजें आई. अब देखिए जैसे ये आर्ट के जो स्कूल है वो कैसे पैदा हुए, वेस्ट में जो हुए. जैसे रियलिज्म है, और रियलिज्म क्यों खत्म हुआ? कैमरा आ गया, कैमरे के बाद आर्टिस्टों ने सोचा, फिर इम्प्रेशनिज्म आ गया, एक्सप्रेशनिज्म आ गया, एब्स्ट्रैक्ट और क्यूबिज्म और सो ऑन. अब बॉडी आर्ट आ रहा है और डिफरेंट चीजें, यानी स्ट्रीट आर्ट आ गया. मगर मैं समझता हूँ कि हमें जरा सा ये देखना चाहिए कि फंक्शन को, जो आर्ट के फंक्शन को, वो इन व्यू जरूर रखना चाहिए कि इसका अल्टीमेट. मसलन आपने एक प्रोग्राम जैसे वो पाउडर से कर रहे हैं और फिर वो उसमें से फिगर बना रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तो फिगर बनती है और फिर उसको खत्म कर देते हैं. फिर ये, मगर हमें ये देखना है कि ये फॉर चंद मोमेंट्स या आवर या समझ लें एक दिन के लिए तो आप खुश हो गए, मगर उसका फंक्शन क्या होगा अल्टीमेटली, उसका हिस्ट्री में किस तरीके से उसको लिया जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है. फिर हमारा जो पाकिस्तान है, मैं ये आपको बताऊं कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे न्यू स्कूल ऑफ आर्ट उस वक्त होता था और ये यूनिवर्सिटी, इनको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे. स्टूडेंट्स क्यों नहीं मिल रहे थे? वो हमारा रिलीजन जो था वो एक बैरियर था. वो फिर इसमें थोड़ी सी ये कैरिकुलम में चेंजेस आई और लोगों के ज़हन वाश हुए कि भाई नहीं, ये इसका मजहब पे कोई असर नहीं है इस तरीके से. जब मैं दाखिल हुआ था तो मेरे पेरेंट्स के पीछे लोग लग गए थे कि ये आपने कहाँ दाखिल करवा दिया, ये तस्वीरें बनाएगा. तो मकसद ये है कि वो दौर और था. तो अब दौर जैसे जैसे हमारे पास देखिए टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गया, अब डिजिटल आर्ट हो रहा है और ये चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते. बस मुझे थोड़ा सा ये जो फील होता है वो ये होता है कि हम इसको जो देर पा जो है इसकी, यानी इसको किस तरीके से हम ऐसा हो जिसका फंक्शन हो, आर्टिस्ट को भी फायदा हो और पब्लिक को भी फायदा हो. वो हमें जो चेंजेस है ना वो लाने की, उसकी एक लिमिटेशन इसमें रखने की हमें जरूरत है.
मगर हम अवॉइड नहीं कर सकते अपने जो कल्चर को, अपने मजहब को। हमें अब देखिए यहाँ कितनी, कहाँ कैलीग्राफर पहले तो कैलीग्राफी करते थे, आपको पता है कि वो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी किताबत मिल जाती थी। अब किताबत तो सारी कंप्यूटर पे होगी, अब वो पेंटिंग में आ गए। अब पेंटिंग में जो कैलीग्राफर आए हैं आर्ट पढ़ के, उनके काम में और जो नहीं पढ़े उनके काम में फर्क है। तो ये मतलब ये हुआ कि जो वो देखते हैं, जो करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। तो लिबरेशन का मेरा ख्याल ये जो है ना, वो एक हमें अपने आप को इस दायरे एक हमें बनाना पड़ेगा, और उसको फंक्शन को मेरा फोकस होता है कि मैं आमतौर से कहता हूँ लोगों से, यंगस्टर मेरे पास आते हैं बड़े, तो मैं कहता हूँ कि भाई देखें, आप काम ऐसा करें जो देर पा भी हो और जो हमारी जरूरत भी हो। तो अब ये जो है ना लिबरलाइजेशन ऐसी तो नहीं चाहिए हमें कि मतलब ये है कि किसी काम, कोई काम ही ना आए, 2 मिनट के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हो। अब आपके म्यूजियम खाली हो जाएंगे इस तरीके से, और ना इतने बड़े म्यूजियम बना सकते हैं कि जिसमें इस तरीके से जो काम वो बोर्ड पे छींटे मार के बना रहे हैं, तो आप म्यूजियम में कैसे लगाएंगे, आपके पास स्पेस नहीं है। तो ये लिबरलाइजेशन को हमें, मेरा ख्याल है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट है, माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे। देखिए हमारे जमाने में तो कोई पीएचडी मिलता नहीं था, कोई होता ही नहीं था, कोई कोर्स ही नहीं था। तो किसी ने कर लिया तो बहुत, कोई नहीं मिलता था। बाद में अभी माशाल्लाह कितने लोग हो गए हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि देखिए किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, लगन है, और उनको थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हैं कुछ राइट काम सर, को, मैं वरना आपकी आर्टिस्ट बात बिल्कुल नहीं से, करता। जी जी, जी मैं बताइए। आपकी बात से आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे पास आया है, और उसका मैं चाहूंगा कि मैडम से, डॉक्टर स्मेरा जवाद से पहले मैं इसका डिस्कस करना चाहूंगा जी कि जरूर। मैडम, अभी बिकॉज यू वर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्ट बिनाले लास्ट ईयर इन 2019। जो उस बिनाले के ऊपर जो है पॉलिटिकल कहते हैं इन्फ्लुएंसेस रहे, उसको सामने रखते हुए आप समझती हैं कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट जो है वो लिबरल है? आप इसमें जो पाकिस्तान बिनाले आप कराची में लिबरल तो है ही, ये आप सवाल, डॉक्टर साहबा ये सवाल तो ही ऐसा है कि लिबरल तो है आर्टिस्ट। मैं बता, यानी जो आप देखेंगे, करेंगे वही आप पेंट करेंगे, तो इसमें लिबरल ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब आपका? नहीं, आप वो जो हसान का सवाल है उसमें वो वाक़े के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था उस हवाले से बात कर जी रहे वो हैं। उस पर करें, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, लेकिन आप जहाँ तक, बताएं। हाँ वो तो आपकी बात ठीक है, आर्टिस्ट तो लिबरल है, लेकिन जाहिर है हमारा चूंकि एक डिफरेंट, हमारा एक जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं या जो हमारा जी जितना ये ग्रुप्स हैं, ये सारे इनकी अपनी एक वो होती हैं। आर्टिस्ट तो इटसेल्फ अपने, उसकी बात करें तो he or she is expressing their self through any medium, और जो भी वो बात कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। लेकिन ये जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं वो आज की जी बात नहीं है, वो तो आप फिर आप आज से, अब तो कई 400 साल पीछे चले जाएं तो ये तो हमेशा से रहा है कि उसके के ऊपर एक अगेंस्ट ग्रुप जरूर होता है या किसी किस्म का और कोई प्रेशर है। कभी वो चर्च की शक्ल में रहा है, कभी वो जैसे हम अगर पर्जिया में चले जाएं तो ह्यूमन फिगर को जिस तरह जस्टिफिकेशन देनी पड़ी थी कि जब मिनिएचर में जिस तरह जब उसको बनाया जाता है तो उसके शेडो नहीं बनाया जाता, या उसको एक खास एंगल से बनाया जाता है, या उसका पर्सपेक्टिव है कि नॉट परसीव्ड बाय द माइंड, नॉट परसीव्ड बाय द आई बट परसीव्ड बाय द माइंड, कह के उसको एक हमने जस्टिफिकेशन दे दी है कि हाँ नाउज बिल्ला खुदा की बनाई हुई चीज की कॉपी नहीं कर रहे। तो ये वाली रिजेक्शन तो हमेशा से चलती आ रही है। चल तो रही जो है जी। हमारे कराची बनाले में हुआ था वो भी उसी की कॉन्टिन्यूटी है। और ये आर्ट की लिबरेशन और ये सारे जो जिस तरह के कई समटाइम्स इट्स अ प्रोपेगेंडा, समटाइम्स जो एक रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सेक्ट्स हैं, वो उनका एक अपना व्यू पॉइंट होता है, वो कोई चीज उसके अगेंस्ट आ रही है तो प्रोटेस्ट करते हैं। तो मैं नहीं समझती इसका ताल्लुक लिबरेशन से है, एक बिल्कुल फर्क चीज है। और मैं एक और चीज जो मुझे जावेद साहब, मैं नहीं, एक और मैं मुझे शायद इख्तिलाफ है एक और एक बात से कि आर्ट इज नॉट फंक्शनल।
इसका फंक्शन नहीं होता। आर्ट तो जो आर्ट का आर्ट प्रोड्यूस होता है वो फंक्शनल नहीं होता, जब वो फंक्शनल हो जाता फिर वो आर्ट नहीं रहता, इट बिकम्स क्राफ्ट या ऐसी कोई और फॉर्म या कोई और ये कैसे आप कह इंटीरियर सकते हैं? डिजाइन या देखिए आर्ट कैसे फंक्शनल हुआ, ये एक और डिबेट है वैसे, लेकिन मुझे इस पे थोड़ा सा नहीं, ये इख्तिलाफ रहा कि फंक्शनल तो आर्ट होता ही फंक्शनल है। नहीं देखिए ना, होगा। आर्ट कोई ना कोई मैसेज तो देता ही है ना, तो वो फंक्शनल हो गया। मैसेज जब देता आर्ट है में कोई मैसेज, जब मैसेज नहीं होगा या कुछ ऐसे ही होगा तो फिर तो फंक्शनल, मकसद तो ये है फंक्शनल का कि आर्ट अपना जो काम है वो करे, तो वो जब वो काम करेगा तो फंक्शनल हो जाएगा। ये आप नहीं कह सकते कि आर्ट फंक्शनल नहीं है, क्योंकि बात ये है ना कि ये तो पहली चीज है कि आर्ट अगर आप कोई कर रहे हैं, कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में आ गया है, आपने उसको पेंट किया। फर्ज कर लीजिए कि आप पेंट कर रहे हैं कि यहाँ ये जो धरने हो रहे हैं, मैंने अभी एक पेंटिंग इस पे की है, तो वो उसको पेंट कर रहे हैं। तो अब अगर पेंट किया किस तरीके से, आप कुछ ना कुछ तो दिखा रहे हैं ना उसमें कि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ये क्यों हो रहे हैं, या उनकी डिफिकल्टीज जो हैं, जिन्होंने धरना किया हुआ है उनकी डिफिकल्टीज हैं आफ्टर वो रोड पे बैठे हुए हैं धूप में और सर्दी में, जो भी मौसम है, तो उनके मसाइल, इकोनॉमिक मसाइल हो सकते हैं। तो जब आर्ट करेगा तो वो फंक्शनल तो हो जाएगा। असल में शायद ये मैं इसको देखें, फंक्शनल के दो तरीके हैं ना, या तो वो टेंजिबल फंक्शनल हो या इंटेंजिबल फंक्शनल हो। तो आप हाँ, जब आप फंक्शनल का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरे जहन में या शायद और लोगों के जहन में भी फौरन आ जाता है कि जैसे हमें उससे कोई ये और दोनों तरह बातें का हैं। देखिए, दोनों वरना सब भूखे मरेगा। मतलब ये है मैसेज कि देना ये, एक और बात है हाँ, या वो भी कन्विंस करना फंक्शन लोगों है। को और बात है। वही फंक्शन है। मेन फंक्शन आर्ट का ये है कि यू हैव टू कन्वे समथिंग। ये मेन फंक्शन है आर्ट का। अगर वो उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई उससे आदमी डर नहीं करता या कोई मैसेज नहीं रिसीव करता, तो वो तो पेंटिंग नहीं है। मतलब मेरा तो, क्योंकि अब ये जरा टॉपिक आपने सही कहा था, अपने टॉपिक पे रहें, ये अलग डिबेट के लिए किसी वक्त ये करें। ये भी बड़ा हाँ अच्छा नहीं पॉइंट नहीं है, नहीं, फिर तो जैसे आपका भी ख्याल अच्छा है। और बिल्कुल ये बात है, और मैं भी, ये है कि मुझे कोई अच्छी बात लगती है तो मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ इस स्टेज पे भी। ये नहीं कि जी वो यंग है तो इनकी बात अच्छा, गलत होगी, नहीं, वो बेहतर बात करते हैं क्योंकि वो उनका नया एक्सपीरियंस है, नया एक्सपोजर है, तो उनका फ्रेश माइंड है, तो बेहतर बात कर सकते हैं वो। ये बात नहीं है। ठीक है। जी, मोबाइल में तो स्टार्ट नहीं ठीक राइट। है। कोई, जैसे हम फंक्शनल की बात करें तो वही बात की डिबेट इतनी फैल सकती है जी, कि फैल अगर फिर जाती हम है। देखें देखें अगर ऐसी बात होती तो अरिस्टोटल ने जो जो अब जिस टाइम पर अगर हम उस पर चल जाते हैं तो वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो कोई अपनी कोई भी कहीं भी बात को किसी रिटन फॉर्म में लाए। उसका ख्याल था कि जो मैं बात कह रहा हूँ उसका असर उसी तरह से हो जाना चाहिए लोगों पर, या मेरा मैसेज वेरी तो कन्वे हो करेगा गया ये। हाँ तो वो जी, आर्ट वेरी तो, जी जी जी, बात करें ना, आप सवाल करें, जी। डॉक्टर अब साहबा नेक्स्ट से सवाल क्वेश्चन। करें। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरा सब हो गया मैं ख्याल। हसन साहब गायब हो गए। जी जी जी, मैं नहीं, हसान आपकी आवाज हमें आई थिंक बाकियों को भी ऐसे ही हो रहा है, नहीं आ मैं रही। वो मुझे नहीं पता डिस्टॉर्ट हो चल रही रहा है। है एक ऐसा। क्वेश्चन के ऊपर आना चाह रहा हूँ, और पहले मैं सवाल जो है वो मैडम सादिया और माहम से करना चाहूंगा, क्योंकि एक और हमारी एज एन एकेडमियन जो है ऑब्जर्वेशन ये है कि लिबरेशन की वजह से आर्ट की जो फॉर्म है वो चेंज होती जा रही है, और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी जो है, क्योंकि अगर हम वो एक किताब है आर्ट एंड लिबरेशन पे, वो मंगवा ले, मेरा ख्याल है वो आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। वो अच्छा, आवाज नहीं जा रही मेरा ख्याल है।
सादिया आपको आवाज आ रही है? सादिया आपका माइक म्यूट है। हाँ, आपकी आवाज नहीं कोई आ रही। प्रॉब्लम है? सॉरी जी, मैं ये कहती कि हसन आपका जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हम बात, आपका जो टॉपिक है हमारा वो ही इतना एक्सप्रेसिव है इन इटसेल्फ के आर्ट एंड लिबरेशन। तो वो जो आप कह रहे हैं कि एक बहुत एक कन्वेंशनल स्टाइल से बहुत फ़र्क तरफ चल पड़ा है आर्ट, तो ऐसा बिल्कुल है। और मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बदल गए हैं, बहुत तरह के नए आर्ट जॉनर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, और जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कहा जाता था उन बाउंडिंग से निकल के आर्ट अब बहुत सारी नई तरह का हो गया। अब वीडियो प्रोडक्शन में देख लें, बहुत सारी और इतने सारे आर्ट के तरीके आ गए हैं कि उसमें कोई वो नहीं रह गई। और जो एस्थेटिक्स की एक सेट एक जहन में पैरामीटर्स होते थे, वो भी अब एक बाउंडलेस हो गए हैं, उनमें भी बहुत एक ओपननेस आ गई है। एनीथिंग कैन बी डन इन आर्ट, एनी काइंड ऑफ वो एस्थेटिक की जो एक जजमेंट है वो भी अब, वो जो एक कन्वेंशनल जजमेंट थी उससे अब हम निकल गए हैं। अब हम एक फ़र्क तरह से चीज़ों को देखते हैं। इवन बीइंग टीचर, जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो अब जो कॉन्सेप्चुअल आर्ट के हवाले से काम चल रहा होता है उसमें बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी हम चीज़ों को और तरह से देखना सिखाते हैं। जस्ट एक ये आंसर नहीं कि ये अच्छा लगता है तो हमने करना है, there must be a reason behind it। तो उस कॉन्सेप्ट और reason के That's what I साथ mean. पूरी वो जो एक एस्थेटिक वैल्यू है, एस्थेटिक अप्रोच है, वो चेंज हो गई है। बिल्कुल ऐसा है। माहम, आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं सादिया की बात को सेकंड करूंगी। एकेडमिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऐसा बिल्कुल देखने में आ रहा है। जिस तरह आपकी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती जा रही है ना, बच्चा बहुत इजी गोइंग होना शुरू हो गया। पहले ये होता था कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी, बच्चा एक्चुअली काम करता था अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है, एंड देन फिर वो उसको प्रोड्यूस करता था। अब क्या हो गया, अब आपके पास इजी वे आउट आ गया, आपको पता है आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, आप फटाफट उसके ऊपर काम करो एंड देन अपना काम प्रोड्यूस करो। नुकसान उससे ये हो रहा है कि आपका जो पीस आपके पास आता है ना फाइनल, उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, वो लैक कर रहा होता है। फिर क्या होता है, वो अपनी चीज को डिफेंड नहीं कर सकता, वो एक्चुअली बता नहीं सकता कि मैंने जो भी आर्ट पीस या क्राफ्ट जो भी प्रोड्यूस किया है इसके पीछे एक्चुअली थॉट प्रोसेस क्या है। सो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं। उसकी वजह एक ये भी है कि हम ना, मुझे ऐसा फील होता है बीइंग इन एकेडमिक्स, हम ना रूट्स से, हम या हमारा बच्चा, जो नई जनरेशन है, वो रूट से हमारे दूर होती जा रही है। वो इतना इजी गोइंग हो गई है कि वो कहती है कि लेस टाइम में प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है। और वो ये होता है कि यार अब मेहनत नहीं करनी, अब कौन वो बैठ के, आप जैसे हम लोग, अगर मैं अपने टेक्सटाइल्स की बात करूँ तो हम लोगों को ये सिखाया गया है कि सारा काम मैन्युअली करना है। अगर आपको एक दफा मैन्युअली आएगा तो डिजिटल इज नॉट कोई ऐसा इशू नहीं है, वो तो आप किसी भी टाइम कभी भी सीख सकते हो, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मैनुअल वर्क के अंदर अगर आप मास्टर नहीं करोगे और उसके अंदर आपको अबूरत हासिल नहीं होगी, तो आप जब भी अपना कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो। क्योंकि आप जब मैनुअली कोई काम करते हो, कोई चीज थॉट प्रोसेस में जाते हो, तो आप उसको एक एक स्टेप को फॉलो करते हो। जब आप वही चीज कंप्यूटर बेस्ड करते हो, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मेरा अपना टेक्सटाइल आर्ट की तरफ में मेरा वहाँ ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो मैं जब बच्चे को कहती हूँ कि तुम लोग हाथ से मैनुअली काम करो, या वो जब डिजिटली काम कर रहे होते हैं, तो वो इतना क्विक प्रोसेस है कि वो उनका जो बीच का एक गैप है ना, वो फिल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे ये लैक हो रहा है अपनी जनरेशन में। और उसका अफेक्ट जो है ना उनके फिर फाइनल पीस में आता है, जब आपकी ज्यूरीज होती हैं, जब आपको कुछ बताना होता है, तो वो फिर वहां पर बहुत ज्यादा उनके लिए मसले होते हैं। मैडम सुमेरा, मैं आपसे इसकी कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्योंकि जनरेशन गैप भी है और टेक्नोलॉजिकल गैप भी हमारे पास इस वक्त है स्टडीज के अंदर, लेकिन जब हम लिबरेशन की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अभी वो जो एक गैप है वो हम कैसे फिल कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमें फास्ट चलना पड़ता है, जल्दी काम करना पड़ता है, और टेक्नोलॉजी को हमें यूज भी करना पड़ता है, लेकिन वो जो एक गैप आ जाता है कॉन्सेप्ट का और उसके पीछे होमवर्क का, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है इस सारे चक्कर के अंदर। क्योंकि होमवर्क जो है वो मैनुअली होता है और
جو ریگولر ورک ہے وہ آپ کا ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. تو وہ گیپ ہم کیسے فل کر سکتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو مجھے ایک سمپل بات, ایک تو مجھے آپ کے کویسچن کی انفیکٹ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا ہے. جنریشن گیپ, آپ کس جنریشن گیپ کو کہہ رہے ہیں, کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جنریشن میڈم گیپ کہاں پر آیا؟ میں انڈرسٹینڈ ہاں کرواتا ہوں کہ ہم لوگ اکیڈیمینز ہیں ایک طرح سے, ہم ٹھیک لوگ ہے. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں, اور ہماری جو ٹریننگ ہے بینگ این آرٹسٹ, وہ ایک آج سے اگر ہم کوئی 15-20 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی, اور ہم لوگ مینول کے اوپر کام کرتے آ رہے ہیں زیادہ تر. آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ہمارا کام جو ہے زیادہ تر جو ہے ٹیکنالوجی بیس ہو گیا ہے. تو ایک تو جنریشن گیپ یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے مینول کیا اور ہم لوگ جو ہے ٹیکنالوجی بیس کام کروا رہے ہیں, اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں یا ینگ آرٹسٹ آ رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر اتنی ہمیں اس کی اسپیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنا پڑتا ہے. تو اس اسپیڈ کو میچ کرنے کے ٹائم کے لیے درمیان میں ہم جو ایک کانسیپٹ والی بات ہم کر رہے ہیں کہ کانسیپٹ نہیں ہوتا آرٹ ورک کے پیچھے, یا ہوم ورک نہیں ہوتا اور بچہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر پاتا, تو اس گیپ کو ہم کیسے کور؟ اچھا یہ میرے لیے بہت ابھی سوال میں تھوڑی سی آپ کی طرف سے, ہاں آپ کا ہو گیا, لیکن میں بتا دیتی ہوں ابھی آپ کی طرف سے تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جیسے میں نے پہلے شروع میں بھی بات کی تھی کہ میں اب سب سے پہلے کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کی بات کروں گی, پھر اس کے علاوہ بہت سارے انسٹیٹیوشن جن سے میرا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ہر وقت رہتا ہے. تو جو ہمارے کورسز ہوتے ہیں, جیسے 4 ایئرس کی ڈگری ہے, ہم سب اس کی چھوٹی سی ابھی مثال ہے کہ لائک ایک بچہ ہے جو اس وقت میرے پاس یہاں پر, میری بیٹی ہے جو PIFT میں پڑھ رہی ہے اس وقت, اور وہ اس وقت بیٹھ کے مینول ڈرائنگ کر رہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے یہ سارا کچھ نہیں کرا رہے. ہماری ٹریننگ میں مینول سے لے کر فائنل ایئر تک لانے میں سارا پروسیس وہی ٹریڈیشنل سے لے کر ماڈرن تک کا چل رہا ہے جو ہمیشہ سے تھا. ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے وہاں پر ہم نے ایڈ ضرور کیا ہے, جیسے 3rd ایئر میں آ کے ہم نے انسٹلیشن یا ویڈیو یا ان ساری چیزوں کو ایز اے سبجیکٹ بیچ میں ایڈ کیا, لیکن ہماری بیسک ٹریننگ تو وہی ہے. ہم تو اس کو اسی طرح ڈیولپ کراتے ہیں سارے کاموں کو, اور اسی طرح ہر آرٹسٹ جب وہ جیسے آپ ہاں, یا جب وہ تھیسس پروجیکٹ آتے ہیں, پھر دین دے چوز وٹ ایور دے وانٹ, لائک اگر کوئی پھر اس میں بھی پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ان کا مجھے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, دے آر ویری کلیئر اباؤٹ دیئر کانسیپٹس. تو اگر اس ٹریننگ میں پیچھے سے لے کر اب تک مینول سے اس کو کوئی بلڈنگ بنی ہو اب, تو وہ ضرور کلیئر ہوگا اپنے ساتھ. اور تیسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گیا, جو ٹریڈیشنل آرٹ ہے یا جو پران جس کو ہم کہہ رہے ہیں جو بہت ریئلسٹک کام ہے, وہ سائڈ بائی سائڈ اسی طرح چلتا آ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ 50% تو کام ہے ہی وہ. اور جب ہم بات کی فیلڈ میں, کمرشل فیلڈ میں جاتے ہیں, جب آرٹسٹ پریکٹیکل میں جاتا ہے, تو وہاں پر تو آپ کو ٹریڈیشنل زیادہ ملے گا. یہ تو صرف آپ کو یہ جو ساری چیزیں ہیں, آپ نام گنے چنے نام بتائیں پاکستان کے آرٹسٹ میں سے کون ہے جو بہت زیادہ ڈیجیٹل اور ماڈرن میڈیمز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میڈم جس طرح اس وقت انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہیں راشد رانا ہیں, جو کہ ٹوٹلی ڈیجیٹل سٹائل میں کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ابھی ایک اور ہمارا جو لاسٹ سیشن چل رہا تھا اس میں RM نعیم موجود تھے, ان کا کام کافی سارا ڈیجیٹل کی طرف موو کر گیا, بیکاز ان کا موو نہیں کیا, وہ دونوں میڈیمز کا سائڈ بائی سائڈ پلے کرتے ہیں, سائڈ کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جو اس وقت ان کا سامنے آ رہا ہے کام, وہ ڈیجیٹل بیس زیادہ نظر آ رہا ہے. تو وہ زیادہ نظر آ رہا ہے, جس میں سم ٹائمز جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے IAF کے لیے فلم بنائی تھی, جی بالکل, اور وہ سارا ڈیجیٹل کام تھا. تو ہم ظاہر آرٹسٹ جب آپ اس کنٹمپریری ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور اس کے ارد گرد ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو آٹومیٹیکلی وہ سوئچ کرتا ہے کبھی ادھر سے ادھر, اپنے ہی اس جو بیسک آئیڈیا کو لے کے میڈیم کو سلیکٹ کرتا ہے یا اس کے ساتھ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے. تو لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو جو ہمارا جو کمرشل ہے, جو ہمارا آپ آرٹ گیلریز میں چلے جائیں, جتنی آرٹ گیلریز ہیں, آپ لاہور کی میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو کیا کام ملے گا. جاوید صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو موسٹلی کام ہے, یہ ہم کبھی بھی شکایت نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو کام ہے وہ بالکل ڈیجیٹل ہو گیا ہے, بالکل ماڈرن ہو گیا ہے.
اور میں ایک اور یہاں پہ جاوید صاحب کی مجھے جاوید صاحب کی ایک اور بات سے اختلاف ضرور ہوا کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے آرٹ بیسیکلی از این ایکسپریشن. تو وہ چاہے 5 منٹ کے لیے اور ریت پہ بنا کے وہ اڑ گیا ہے, لیکن اس نے جو اپنا میسج کنوے کرنا تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ اس نے کر دیا ہے. اور اب ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے وہ فیسلٹی ہے کہ ہم اس 5 منٹس کو کیپچر کر لیں جس میں اس نے بنایا اور اس کو مٹا دیا, اور اس ڈاکیومنٹیشن کو کسی بھی فارم میں ہم رکھ دیتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ کیا اب ہم نے اگلے 100 سال تک وہ رہتی ہے یا نہیں, تو اس کے بارے میں تو کسی بھی چیز کے بارے میں وہ وہاں پر جب اب بات آتی ہے تو جی بالکل وہاں پر یہ بات آتی ہے کہ پھر وہ واحد پینٹنگ ہے, وہ میڈیم ایسا ہے جو پرماننٹ ہے, وہ ہمیشہ رہ جائے گا. باقی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ورنہ آج لیونارڈو اور مائیکل اینجلو کہیں بھی نہ ہوتے, ہم ڈھونڈتے رہ جاتے کہاں ہیں وہ سافٹ کاپی اس کی کام کی. تو سوری میں آپ کے سوال سے بہت دور چلی گئی ہوں حسان. آواز بند ہو گئی. جی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کا کوشچن آیا ہے, تو میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور 1 by 1 میں آپ لوگوں سے اس کا آنسر بھی چاہوں گا. اسٹوڈنٹ لکھ رہا ہے, وی آر ڈائریکٹلی اگنورڈ بائی فیملی ڈیو ٹو آرٹسٹ اینڈ ایٹ دی اینڈ وی فیل دیٹ وی آر گوئنگ رانگ, وٹ شوڈ وی ہیو ٹو ڈو. نہیں پہلا کیا کہتا ہے فیملی, سوری. وی آر ڈائریکٹلی اگنورڈ بائی فیملی ڈیو ٹو این آرٹسٹ. اگر ہم آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو فیملی ہمیں اگنور کرتی ہے. ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں ایز آرٹسٹ, ایک ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں. ایکسیپٹنس کیا ہے معاشرے میں, اس کے حوالے سے بات ہے. خیر یہ تو اب بہت پرانا سوال ہو گیا. اب تو ماشاءاللہ ہمارا آرٹسٹ تو بالکل ایک ڈاکٹر کی طرح ریسپیکٹیبل ہے, اس پیسے بنا رہا ہے اور اس کے لیے بے شمار اپرچونٹیز ہیں, وہ ہر طرح کا اپنے ایکسپریشن کے تھرو بے شمار کام کر رہا ہے. لیکن سمیرا ابھی بھی ڈاکٹر سمیرا اس طرح ہی ہے کہ بہت سارے عام جو لوگ ہیں نا وہ آرٹ اسٹوڈنٹ کو اس طرح ہی لے رہے ہوتے ہیں, اچھا تم لوگ ڈرائنگ بنا لیتے ہوگے, اچھا رنگوں سے رنگ کر لیتے ہو, بس انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے, جسٹ ایک شوق ہے جیسے ہو رہا. یہ ایک بالکل ایک جو لے میں نے اس کی بات کر رہی ہوں میں. تو دیکھیں وہ تو جب بات سے 300 سال پہلے جب بیچارہ ایک شاعر لکھتا تھا تو اس کو بھی تو یوں ہی کہا جاتا تھا. ایسے ہی ہوتا تھا. وہ چیز تو آپ پتہ ہے یہ چلتی رہنے والی چیزیں ہیں, چلتی رہے گی ایک خاص اس میں. لیکن میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اگر وہ کبھی 50% تھا تو اب وہ شاید 20% لوگ رہ گئے جو یہ سوال کرنے والے. بہت بہتر ہوا ہے, بہت بہتر ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب تک کام نہیں دیکھتے نا تب تک وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جب ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کا کام اتنا اچھا پروڈکشن میں جا رہا ہے اینڈ آؤٹ کم بہت اچھا نکل رہا ہے, تو پھر لوگوں کے ویو پوائنٹس چینج ہوتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. جاوید صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے وہ ایک پرانے دور کے آرٹسٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ ان مائی نالج آپ اکیڈیمین نہیں رہے, آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ سے پراپر آرٹ کی ٹریننگ نہیں لی, تو آپ کے دور میں کیا سمجھا جاتا تھا اور کیا آپ کے ویوز ہیں اس پر؟ نہیں ویسے تو سر این سی گریجویٹ ہیں, سر نیشنل کالج کے گریجویٹ ہیں. اور باقی مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں بہت ساری ہو رہی تھی, یہ گیپ تو ہے ہمارا. وہ آپ نے سوال اس کا جو ہے نا فیملی کا وہ جو اسٹوڈنٹ نے کیا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پوزیشن ہے نہیں, جیسے بتایا ہے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا, وہ سعدیہ نے بھی, کہ اب تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے چیزیں اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں, تو کوئی ایسی ڈیفیکلٹی اس میں نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بات بتاؤں کہ میں جب MIT گیا تھا پڑھنے تو پاکستان میں کمپیوٹر نہیں تھا. اچھا وہاں گئے تو وہاں اسائنمنٹ ملنی شروع ہو گئی, تو وہاں کمپیوٹر لیب تھی, تو مجھے کہنے لگے میرے کوآرڈینیٹر پروفیسر بھی تم وہاں جا کے کمپیوٹر پہ کام کرو. مجھے پسینے آ گئے, مجھے کمپیوٹر کبھی دیکھا نہیں تھا, کبھی کمپیوٹر کا کیا کریں ہم, کیسے کام کریں, تو اس کو سیکھنا. پھر وہاں مائنڈ بھی کرتے تھے اسٹوڈنٹ, زیادہ MIT میں ذرا پاکستانی بہت کم ہوتے تھے, اکا دکا ہی ہوتا تھا. تو دوسرے جو تھے وہ اگر ان سے پوچھیں, یہاں تو ہم ایک دوسرے سے فوراً پوچھ لیتے ہیں نا کہ بھئی ہیلپ کرتے ہماری, وہاں وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو وہ اتنی ڈیفیکلٹی مجھے ہوئی کہ نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آئی باٹ اے
टाइप राइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर, उस पर मैं असाइनमेंट करके देता था। तो फिर साथ साथ मैं कंप्यूटर अपने वो सीखता रहा, मगर वो कंप्यूटर मैं सीख ना पाया क्योंकि उसमें इतनी जल्दी वो नहीं सीख सकता, वो उसकी सारी लैंग्वेज जो भी है, प्रोग्राम हमें बड़ी मुश्किल सी असाइनमेंट मिलती थी। तो मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में स्टिल वी आर बिहाइंड। वो जो हमने वहां से पढ़ा था आज तक यहाँ यूज नहीं हुआ, ये आप हैरान होंगे। तो हमें जो जितनी भी पढ़ाई है यहाँ जो होनी है वो हमारी मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो उसका फायदा उठा सकें। जो ये कहते हैं जी उसने वो काम कर दिया, या कोई आर्टिस्ट है वो कोई जूतों की दुकान बना कर रहा है या कोई दूसरे काम कर रहा है, वो आर्ट का काम नहीं कर रहा, उसकी मजबूरी है, उसको लिविंग के लिए चाहिए, पैसे चाहिए तो उसकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो आर्ट रिलेटेड काम कोई ऐसे कर सके जो जिससे उसकी गुजरौकात हो सके। तो ये चीजें जो है ना, ये हम कोशिश बड़ी है। अब हमारे यहाँ आप देखिए कितने आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, बेनता आर्टिस्ट है, और डिफरेंट मतलब स्टाइल्स में काम करते हैं। जैसे डिजिटल का भी आपने जिक्र किया, वो कर रहे हैं एक दो, मगर कई आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कि वो गलत फायदा उठाते हैं डिजिटल से, यानी उसी को उसका इमेज ले लेंगे, उसके ऊपर दो चार स्ट्रोक लगा के ओरिजिनल कर देते हैं। ये अब मैं ओपन कर रहा हूँ बात, कोई बात, क्योंकि मेरा यहाँ एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ कि लोग मेरे पास जो काम आता है मुझे पता चलता है। तो ये चीजें जो है ना, ये अब चेंजेस, या तो वो उसमें हम क्लैरिफाई कर दें कि भाई ये इस तरीके से, ये काफी वर्क है, ओके काफी, क्योंकि इंसान, और ये इस तरीके से हुआ है, इसके मीडियम ये है, तो फिर तो कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो चेंज तो हो सकती है। ये आप चेंज के लिए यही तो है ना, ये जो लिबरेट कर रहे हैं चीजें, तो लिबरेट तो हम मतलब यही चीजें करेंगे जो हम देखेंगे। मैं तो बिल्कुल इसी पे जाता हूँ कि जो भी आप चलते हुए देखेंगे, इधर उधर दोस्तों में देखेंगे, पूरे माहौल में अंदरूने शहर कुछ और होगा, इधर पेरिफेरी पे कुछ और होगा। तो ये चीजें तो आर्टिस्ट तो पिक ही करता है ना चीजें, जो उसको अट्रैक्ट करती है, जो उसको अच्छी लगती है या कोई बुरी लगती है, तो वो पेंट करता है उसको अपने ख्याल से, अपने इंप्रेशन उसके होते हैं। और वो ऐसा ही करना चाहिए उसको कि ताकि एक हिस्ट्री भी बनती है इस तरीके से कि भाई ये ठीक है, उस दौर में ये पेंटिंग अगर 2000 में बनी है तो उसको पेंटिंग को देख के 2000 का पीरियड याद कर ले कोई ना कोई। मगर हमारे यहाँ अब जनरल अवेयरनेस कम है, अभी आर्ट इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। मैं बताऊँ ना, पहले ये हमारा जो गैलरी थी, इनको डॉक्टर साहब को पता ही है कि ये वाहिद गैलरी थी एक्चुअली लाहौर में, अलहमरा, और उसके बाद 2000 में दूसरी गैलरियां बननी शुरू हुई। मगर अब वहाँ क्या मतलब ये प्रॉब्लम हमारे जो है ना, डायरेक्शन, ये इंस्टीट्यूशंस का काम है माशाल्लाह कि वो चेक करें कि क्या कैसे है, बल्कि वो गैलरीज को एडवाइस भी कर सकती है कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए मेरी कोशिश ये रही है कि मैं जो यंगस्टर हैं जो फाइनल ईयर किया है, उनका थीसिस है, शुरू में मैंने उनको बड़ा इनकरेज किया, मतलब ये है कि आओ भाई, कोई इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये पेंटिंग बिकती है या नहीं बिकती, मतलब ये था कि उसको जो स्टूडेंट है उसको इनकरेज करना, उसको थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाएगी, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और वो जो कि बड़ी कमी थी यहाँ पाकिस्तान में, इस बात की बहुत कमी थी। आपको तो देखा भरा हुआ मेले में आए हैं ना, मगर हमने देखा है कि यहाँ, यानी हमारा पहला बैच था एनसीए का, और हम कहीं पेंटिंग नहीं लगा सकते थे। मेरी और जहूर की पेंटिंग अलमरा में गई, उस वक्त फैज साहब थे सेक्रेटरी, मेरी दोनों की पेंटिंग वहां नहीं लगी। तो हमने शाकर साहब को बताया कि ये क्या, फिर फर्स्ट बैच हो गया हमारा कि हमारी पेंटिंग नहीं लगी। शाकर साहब जनाब गुस्से में गए, जाके वो वहाँ पेंटिंग, वो हमें आके कहते हैं जाके देखो पेंटिंग लगी है। तो मकसद ये है कि ये फिर बड़ों का काम है कि वो अवेयरनेस फैलाएं, उनको बताएं कि नहीं इसमें ये तब्दीली आई है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इसको। तो ये चीजें जो है ना हमारी, ये जिंदगी के साथ चलती रहती है। ये हमारे आर्ट का शोभा नहीं है। आर्ट की वैसे टर्म जो है ना, इस पे भी मुझे थोड़ा सा है कि आर्ट, हम लोग तो आपस में बात कर रहे हैं, हमें पता है कि आर्ट
हम किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। जो सुन रहा है वो तो देखेगा कि यार इसमें तो डांस भी आ रहा है, इसमें म्यूजिक भी आ रहा है, इसमें राइटिंग भी आ रही है। और मैं जो जाती तौर पे कहता हूँ कि जिंदगी का हर एक्शन जो है वो आर्ट है, उसमें कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, कोई ना कोई उसका एक्शन है, उसकी एक सोच होती है। इवन चाय पी रहा है तो उसने सोचा भी ठीक है ये गर्म है ठंडी, ही इज थिंकिंग समथिंग। तो मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ कि ये जिंदगी हमारी पूरी आर्ट की है। तो बड़ी वाइड टर्म है, इसको या तो विजुअल आर्ट करना चाहिए थोड़ा सा इसमें हमें ना ये चूंकि अब सारे माशाल्लाह एजुकेशन के लोग हैं, मेरा भी जाहिर है इनसे जब मेरा तल्लुक है तो एजुकेशन से मेरा भी तल्लुक हो गया और रहा है। तो मकसद ये है कि ये चीजें हमें देखने वाली बात है। लिबरल जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो हमें नहीं भूलने चाहिए। जब तक कोई भी स्टूडेंट या कोई भी नया न्यू कमर बेसिक में स्ट्रांग नहीं है, वो लिबरलाइजेशन में आके वो क्या करेगा? क्योंकि वो उसका एब्स्ट्रैक्शन में भी वो अट्रैक्शन नहीं होगी, उसका कोई भी स्टाइल चीजें का वो बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जो हम थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पीछे जा रहे हैं। अगर किसी को कहना कि ये ग्रास की ड्राइंग करो, इनकी डॉक्टर साहबा की तो ड्राइंग से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ शुरू से। जब ये इनको मैं हमेशा कहता था कि यार आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग है। तो हमें भी 5 इयर्स ड्राइंग करवाते रहे, लास्ट ईयर तक ड्राइंग करवाई उन्होंने। तो उसका फायदा क्या हुआ कि हर चीज की अब ड्राइंग कर सकते हैं, हर काम में, आर्किटेक्चर हो, कोई चीज हो, काम फर्नीचर हो, ये हो, हमें कोई काम मिल जाए हम कर लेंगे। तो अब ये जो जरूरत है, अब तो अल्लाह का शुक्र है इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई, एजुकेशन में आ गई, हर स्कूल में है, फिर जरूरियात है, कंप्यूटर आ गया, अब डिजिटल काम तो हो रहा है, कर रहे हैं। कैलीग्राफी भी लोग इस पे डिजिटल आर्ट में कर रहे हैं। हमने एक यहाँ एग्जीबिशन की थी सलीम साहब की, उन्होंने सारी कंप्यूटर पे कैलीग्राफी की थी। फिर उन्होंने सारी जो इलस्ट्रेशन थी उनकी सारी कंप्यूटर पे की थी। मगर मैंने उनसे एक बात की थी कि मैं ये बताऊंगा कि ये कंप्यूटर का काम है, तो ताकि लोगों को ये मिसगाइड ना हो। तो मकसद ये है कि ये चीजें जो है मेरा ख्याल है कि हमें देखनी चाहिए और दूसरों को भी मैं मौका दूं। जी, मैं अब एक आखिरी सवाल के साथ जो है वो आप सबसे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, और उसके बाद हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। और क्वेश्चन मेरा ये है जी कि अब आजकल के आर्टिस्ट को, या आजकल जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं आर्ट के, उनके लिए क्या मैसेज है? बिकॉज लिबरेशन के नाम पर हम बहुत कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें करते हैं। जो पॉजिटिव करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ट की शक्ल बिगाड़ कर, और जिसको हम कहते हैं कि प्लेजरिज्म इन आर्ट, वो करते हुए, और कुछ हम अच्छी चीजों को भी उजागर करते हैं अपने माशरे की, सोशली और पॉलिटिकली, और कुछ बुरी चीजों को भी कर जाते हैं कभी कभी, और लिबरेशन के नाम पर। तो आप स्टूडेंट्स को क्या जो है वो मैसेज देना चाहेंगे? हमें अभी देखिए, लास्ट मैंने तो पहले ही बता दिया कि जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक फ्रीडम का ये नहीं मतलब नहीं लेना चाहिए कि हमें बेसिक प्रिंसिपल जो हैं, या लॉज हैं या रूल्स हैं या जो भी थ्योरी है, उसको हमें उसमें स्ट्रांग होना चाहिए शुरू में बहुत। उसके बाद अपने कोई रास्ता जो भी है उसका तलाश कर सकते हैं। तो बेहतर सबसे ज्यादा यही है कि बेसिक जो है ना प्रिंसिपल्स को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। मैं प्रिंसिपल में रह के लिबरलाइजेशन काम मतलब हो सकता, लिबरेट काम हो सकता है। ये नहीं है कि उसमें प्रिंसिपल कोई नहीं है, आप कंपोजिशन के लॉज नहीं है, उसमें रूल्स नहीं है, तो आप वो कैसे वो अट्रैक्ट करेगी, उसमें बैलेंस कैसे आएगा? वो कोई भी चीज है कोई बनाए, अगर 2 डायमेंशनल बना या 3 डायमेंशनल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं कोई भी, तो उसमें कोई तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करे और लोग उसको देखकर खुश हों। अब डॉक्टर साहबा से और सादिया इनसे पूछें कि क्या जी, यानी ये बताएं। हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया मैडम सरोज तारिक ने भी, तो इसी क्वेश्चन को मैं मैडम सरोज से भी करना चाहूंगा। काइंडली अनम्यूट करें मैडम को।
میڈم سروش آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ آج کل جو ہے لبریشن کے نام پر ہم بہت کچھ پازیٹیو بھی کرتے ہیں اور نیگیٹو بھی کرتے ہیں, تو جو لوگ نیگیٹو کر رہے ہیں آرٹ لبریشن کے نام پر, ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ میڈم سروش, کین یو ہیئر می؟ سروش آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سروش جی میڈم, یہ آڈیو میڈم آپ کی آواز آ رہی ہے. سروش کچھ میں نے کہا شاید آپ کی نہ جا رہی ہو, ہماری جا رہی ہو. سروش کو ہماری آواز نہیں آ رہی. ان کو پھر میوٹ کر کیجیے کائنڈلی. نہیں آ رہی. میں پھر کوشچن جو ہے وہ رول کرنا چاہوں گا میڈم سعدیہ کتب کی طرف. میڈم آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میرا جو میسج ہے وہ بالکل جاوید صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کروں گی, کیونکہ ہمیں اپنی روٹس کو, اپنے کنونشنس کو, جو بگنرس کو جیسے سیکھنا چاہیے, روٹس اسٹرانگ ہونی چاہیے. ایک دفعہ جب آپ اپنے آپ کو ویل اسکلڈ کر لیتے ہیں, اس کے بعد یو آر لبریٹڈ ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. لیکن تب کام جو ہوگا وہ کبھی بھی ویک نہیں ہوگا, اس کے اندر ڈیپتھ ہوگی, اس کے اندر اسٹرینگتھ اپنی ہوگی, اور اس کام میں کی جو کوالٹی ہوگی, کیونکہ وہ آپ اپنی تمام اسکلڈ ہونے کے ساتھ ساتھ خود آپٹ کر رہے ہوں گے. کوئی ایکسپریشن, چاہے وہ ایبسٹریکٹ ہے, چاہے وہ ویڈیو میں آپ جا رہے ہیں, چاہے 3D انسٹالیشن جس میں بھی جاتے ہیں, مگر اس سارے کام کو پہ آپ کی وہ جو بیسک ٹریننگ ہوگی اس کا اثر ہوگا ہی ہوگا. جب وہ نہیں ہوگی تو کام سپرفیشل تیار ہوگا, اس میں وہ ڈیپتھ نہیں آئے گی. سو کو اپنی روٹ اسٹرانگ کرنی چاہیے. اس کے بعد دے آر فری ٹو ڈو وٹ ایور کائنڈ آف ورک دے وانٹ. ہم آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ سعدیہ نے سب کچھ کہہ دیا. میں صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھیں, اگر بالکل صحیح بات ہے, اگر آپ ایک تو اپنے روٹس کو پہچانو, ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے روٹس کو نہیں پہچانو گے نا, پھر آپ جس مرضی ایرا کو اپنا اڈاپٹ کر لو, آپ اس کو بھی صحیح طرح اڈاپٹ نہیں کر پاؤ گے. اگر آپ اپنی چیزوں کو اون نہیں کرو گے تو آپ کسی بھی چیزوں کو اون نہیں کر سکتے. سیکنڈلی, آپ اپنے آئیڈیا سے جو کچھ بھی بناؤ گے نا, آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو, آپ اس کو آگے تک لے کے جا سکتے ہو. بٹ اگر آپ کوئی چیز کاپی کرو گے, کوئی چیز کسی کو فالو کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن اپنے اسٹائل کو آگے لا کے کسی اور کو فالو کرنے میں کیا ہوتا ہے, آپ کا اپنا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ان پٹ کتنی دی ہوئی ہے, آپ کا آرٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کسی کی چیز کو لے کے ایز اٹ از اٹھا کے کاپی پیسٹ کر کے اینڈ دین جب آپ اس کو دو گے تو اس میں آپ کا کچھ نہیں نظر آئے گا. اٹس جسٹ کہ آپ نے اس کی ایک چیز کو ایک اور نظریے سے, ایک اور زاویے سے ایک نئی چیز بنا دی ہے. لیکن اگر آپ کا اپنا کانسیپٹ ہوگا, آپ کی اپنی ایک پہچان ہوگی, تو وہ چاہے وہ ایگزیکیوٹ اچھا ہو یا برا ہو, آپ کی ایک پرسنل فیلنگ نظر آئے گی, اس میں آپ کا ایک پرسنل ٹچ آ جائے گا. سو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ بس کاپی پیسٹ کو, جیسے آج کل بہت سارے نئے ٹیکنیکس جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو گئی ہیں, وہ لوگ جسٹ جاتے ہیں اور وہ کاپی پیسٹ کر کے اور وہ بس جسٹ پروڈیوس کریں, اس میں آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے, وہ تو کسی اور نے آلریڈی ایک ٹیکنیک انٹروڈیوس کروا دی ہے نا. اپنا کچھ کیا کر سکتے ہو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی فیلنگس, آپ جو سوچ رہے ہو, جو آپ کے مائنڈ میں ہے, جو چیز آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. آئی وڈ سے کہ آپ اپنے روٹس کو فالو کرو, اپنے اسٹائل کو فالو کرو, اینڈ اس سے جو بھی کچھ آپ پروڈیوس کرو گے دیٹ وڈ بی یور سگنیچر اسٹائل. وہ اور ایسا کام کرو کہ لوگ آپ کو فالو کریں, نہ کہ آپ دوسروں کو فالو کرو. اسٹائل ضرور بناؤ, لیکن اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلو. Now I would نہیں اڈاپٹ کرنے چاہیے. بالکل. sure. I would request Dr. Sumaira Jawad to conclude this whole session regarding art and liberation. Kindly ma'am, آپ اس سیشن کو conclude کیجیے with overall view. تھینک یو. مجھے لگ رہا تھا ہمیں سروش سے بات کرنا تھی, وہ نہیں ابھی تک آ سکی. سروش کو میم شاید میڈم کا جو ہے وہ انٹرنیٹ پرابلم آ رہا ہے, کیونکہ ہم ان کو انمیوٹ کیا, ان سے بات کی, لیکن کوئی آنسر نہیں آیا آج کا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میں اس طرح سے کنکلوڈ کروں گی, جیسے شروع میں بھی میں نے بات کہی کہ اگر ہم ساری انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں, جس طرح اگر ہم اس کو اکیڈیمکس کے حوالے سے اس کو ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے, تو ہم آلریڈی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں جو کہ ہوتا ہے, جو ہونا چاہیے, کہ ہم بیسک سے چلتے ہیں اور پھر گریجولی ان کو ڈیولپ کرا کے پھر ہم ایک خاص پوائنٹ پہ آ کے ان کو اوپن کر دیتے ہیں. یہاں پر اب دو طرح کی لبریشنس ہیں, لبریشن آف چوزنگ مٹیریل, یا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیم ہے کہ کس میں اس کو ایکسپریس کرنا ہے. دو طرح کی لبریشن آ جاتی ہیں کہ وہ کیا وہ ٹریڈیشنل میں جانا چاہتا ہے یا وہ ماڈرن یا جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. دوسری آ جاتی ہے
लिबरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, लिबरेशन ऑफ आइडिया, तो बात क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर ये दो मैं समझती हूँ लिबरेशन ऑफ मीडियम तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो लिबरेशन ऑफ आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है, इस पर आके थोड़ा सा हम सबको एज टीचर या जो भी हम सीनियर हैं उस लिहाज से हमें थोड़ा सा यहाँ पर आके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको चूंकि कंक्लूड कर रही हूँ और ये कुछ चीज़ें पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने महसूस किया था कि समटाइम्स हम हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें बहुत सारे हमारे डिफरेंट सेक्ट्स हैं, जिसमें हमारा एक रिलीजन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसके साथ रहते हुए हमें किन चीज़ों को लेकर आगे चलना होता है थ्रू आर्ट। तो मैं समझती हूँ कि लिबरेशन ऑफ मीडियम तो होनी चाहिए, लिबरेशन ऑफ एक्सप्रेशन या लिबरेशन ऑफ थ्रू कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर आके हमें अपने बहुत सारी चीज़ों का, हमारे ट्रेडिशंस का, हमें हमारी नॉर्म्स का, हमें हमारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स का, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और फिर उसको अपने काम को जब आप प्रेजेंट करते हैं, तो मैं नहीं समझती, मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडियम का एक्सप्रेशन है उसके थ्रू कोई भी बात कहने की लिबर्टी हर आर्टिस्ट को होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं करेंगे पूरी दुनिया में हम उससे एक खास लेवल के जो उसका एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि जब मैं जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हम कहीं भी पीछे नहीं है, हमारा काम उसी लेवल पर है। हाँ, मुझे कभी कभी थोड़ी सी इन चीज़ों पर ज़रूर होता है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात हमें ओन करना चाहिए कि हमारा जो यहाँ का एक खास जो ट्रेडिशन है या जो एक लाइफस्टाइल है या हमारा जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें अपने थ्रू आवर वर्क वी शुड फॉलो दोस कॉन्सेप्ट्स और वो सारी चीज़ों को उसमें रहते हुए हमें मीडियम के थ्रू आर्ट और लिबरेशन जैसी भी चाहते हैं उसके साथ हम चलें और अपना काम प्रोड्यूस करें। जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है वो हम ऑलरेडी करा रहे हैं, हम स्किल हम हर चीज़ को करवा रहे हैं और हम इसको ओन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की तरफ से नियर फ्यूचर में आपको बहुत मज़े की और चीज़ें मिलेंगी जिसमें ट्रेडिशनल आर्ट्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं या वो एज अ सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जिसमें हम ये इसको रीइंफोर्स करेगा इस आइडिया को। थैंक यू। मुझे लगता है सरोज आ गई हैं। सरोज से हाँ बात। हसन आपके म्यूट है, हसन आप। जी सरोज आप हैं हमारे साथ? सरोज हसन आपका म्यूट हुआ है स्पीकर। जी मैं सब स्पीकर्स का और पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जावेद साहब, मैडम सादिया, मैडम सरोज एंड मैडम महाम इमरान। अनफॉर्चुनेटली मैडम सरोज ने हमें काफ़ी लेट ज्वाइन किया कुछ इंटरनेट इश्यूज की वजह से, और हम मैडम से क्वेश्चन भी करते रहे दरमियान में। आई डोंट नो अभी भी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है मैडम को? I think so there is a net problem. So I would like to thank Dr. Sumaira Jawad कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, मैडम सादिया कुतुब, महाम इमरान एंड जावेद साहब. Thank you very much, ma'am, for calling us. Thank you for so this much. informative Thank you, conversation all with of us in Thank art you and so much. liberation. Thank you. Thank you. थैंक यू जी। Okay. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.